So, good morning to everyone. So, today we'll discuss about a topic which is very important in GATE also and in your university exams also, that is DMA controller. What is DMA? DMA means direct memory access. Okay. Now you see that this diagram, that there is the processor and main memory, and this processor and main memory are connected in a system bus, and this system bus there is also a disk, there is a DMA controller, and this DMA to this DMA controller a network interface is connected. There is a printer and keyboard. Now you see that there is a main memory. The disk is the secondary storage device. The disk is mainly the secondary storage device, or we can say that it is a secondary memory. Printer is the output device, and keyboard is the input device. So basically a system looks like this, that there is a processor and a main memory, and these are connected with the system bus, and in this system bus there is also a secondary memory connected, a input output device is connected, and basically the new thing is the DMA controller. This is a hardware module, this is connected, and a network interface. Now, the system bus is mainly responsible for the establishment of communication between all the internal components of a computer. So means that all the components that are connected in this system bus, that makes the communication between them through this system bus. Means the processor will be communicated with memory through this system bus, or input output devices communicated through the processor through this system bus. So system bus is basically acts like a path, communication path. Okay. So system bus is mainly responsible for the establishment of communication between all the internal components of a computer, and disk is the secondary storage device, and here the printer is the output device and keyboard is the input device. And this network interface is used to connect network with the help of LAN port to the computer. Means this network interface is mainly used to connect to the network with the help of LAN port to the computer. Okay. So now what is the use of this DMA controller? So basically, to know the uses of the DMA controller, we have to first understand the working of the processor. Now let us consider we want to use a computer, or we can say that we want to operate a computer. So whenever an input output device of a computer, here our input output device is keyboard. Sorry. So whenever input output devices of the computer is used, like through input output device, we want to type something. Now in our total this system, our input output device is keyboard. So now we want to write something, or we want to write something to through keyboard. Then if we enter some character, now first if we want to write, then we have to enter some character through keyboard. Means we have to enter some character through our input output device, but here our input output device present is keyboard. So we want to enter some character through keyboard. Now after entering some character through keyboard, our request will directly go to the processor. Now whenever the user will enter some character on the keyboard, then it is immediately displayed in the monitor. But in the back end, this process works. Like if we enter some word in the keyboard, then the character or the word which we use directly goes to the processor. Means the request
Now the request goes to the processor through this system bus, because input output device will communicate with the processor through this system bus. It acts like a path. So if we enter some character through keyboard, the request will directly go to the processor via system bus. Okay. Now through processor, the request goes to the main memory. Through processor, the request goes to the main memory via system bus. And after that, from main memory, the desired output will be displayed through the output device. Now here we have the printer. So the character will be shown in the display. The character will be displayed, or we want to print something, it will be through the printer. So we only see that after entering some character through keyboard, it is displayed in the monitor, or our printer prints that. But in the back end, this process works that if we enter some character through keyboard, the request will go to the processor via system bus, and from system bus, the request will goes to the main memory, and from main memory, it will goes to the directly to the output device to print the character or to display the character. So this from this backend, that process works. Okay. So the system bus is responsible for to transfer this information. But this works done in very small time, in millisecond. But we didn't see this. The backend process which works, we didn't able to see this. We only see as a user, we only see the desired output. But in backend, such a process is works. And all the thing, all the operations in the computer, all the operations in the computer, the processor is involved. Because without a processor, a computer is a dead. You can say there is nothing in the computer left. So all the thing will be done through the processor. But the major drawback is that the system user wants to communicate with the system. It is compulsory that all the requests should goes to the processor. But processor is not basically dedicated for this work. Processor has other works also to do. That is arithmetic operations, thing, all the things in the computer, all the operations in the computer, the processor handled that. It is not only dedicated to transfer informations like that or makes communication between a user and a system. So the processor is totally, we can say that processor is loaded with works. It has not so much time left to do this particular task. So to do this particular task, the processor takes time because processor has other works to do also. But one thing, without this, so we can say that if we remove the processor, then through other methods we can do this. But without the processor, there is no system available. The processor will have to be involved. But without the processor, we cannot do anything. So to remove this problem, a hardware module is involved. That is the DMA controller, the hardware module which involved. That is the DMA controller. Now, without giving the request to the processor, if we use the DMA controller to perform this, then our work will be much faster. Because DMA controller is a hardware module basically dedicated for this work to make the communication between a user and a system. So now if we use DMA controller, then after entering some word or a character through keyboard, it will directly goes to the DMA controller through system bus. And from this DMA controller,
the request goes to the main memory, and from main memory, the desired output will be displayed through monitor, or the desired output will be printed through the printer, means the dedicated output device. So without giving much headache to the processor, we use this hardware module DMA controller, which will look this communications, which will look this communication. So DMA controller is basically used for that, and it works much faster because it can do not do anything. It only makes this that communication between input output device and main memory, and the desired output will be shown to the with output device. So without involves in processor, without involving the processor in the communication, we can make this through DMA controller. Then our work will be much more faster, because DMA controller has not other things to do. It has only the thing it has to be do is to make that communication. So the processor is not involved in that, and DMA performs this operations. So without involving the processor in the communication, we can perform the communication through this DMA controller. Okay, clear? Okay. हेलो सर, सर आप इसका प्रोसेसर में ड्रॉबैक बताएं कि प्रोसेसर एक साथ में बहुत सारा काम हैंडल करता है, इसलिए इसका टाइम हाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है। लेकिन हाँ फिर हाँ सर हाँ फिर आप बताएं कि इसलिए इसमें यहाँ डीएमए यूज करते हैं, तो फिर डीएमए हम्म, कंट्रोलर कीबोर्ड से कनेक्ट होके फिर कीबोर्ड का वर्ड कैसे करता है, जो फिर मेन मेमोरी में जाके प्रिंट करेगा? देखो और फिर सर डीएमए इसमें डिस्क का क्या यूज होगा? देखो डीएमए कंट्रोलर जो है, डीएमए कंट्रोलर जो हार्डवेयर मॉड्यूल है हम लोगों का, वो हम्म एज ए प्रोसेसर की तरह ही हम लोगों का ये हार्डवेयर मॉड्यूल है। ये प्रोसेसर की तरह ही काम करते हैं, मतलब कम्युनिकेशंस के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं डीएमए कंट्रोलर। अब देखो प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर मेनली क्या है, इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ तुमको तुम्हारा ऐसे ये जो कनेक्शन है इसके लिए प्रोसेसर का बहुत सारा काम है, सिर्फ ये काम करने के लिए प्रोसेसर नहीं है। तो अब जितना तुम क्या होता है कि किसी के ऊपर तुम जितना लोड दोगे, तो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगा। कि तुम जितना उसके ऊपर लोड दोगे तो उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज करते हैं। अब ये जो है प्रोसेसर को हम लोग, प्रोसेसर का लोड जो है, प्रोसेसर का लोड थोड़ा कम करने के लिए हम लोग क्या है, डीएमए कंट्रोलर यूज करते हैं। अब ये जो डीएमए कंट्रोलर है, प्रोसेसर जैसे सब काम कर सकते हैं, डीएमए कंट्रोलर ऐसे नहीं है कि वो सब काम कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ कोई इनपुट डिवाइस से कुछ इनपुट लेगा, और उस इनपुट को क्या है, उस इनपुट को मेन मेमोरी में ट्रांसफर करेगा, एंड थ्रू मेन मेमोरी हम लोग का क्या होगा, डिजायर्ड आउटपुट में हम लोग उस जो रिक्वेस्ट हमको भेजे है, उस रिक्वेस्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे हम मानो कि कोई इनपुट डिवाइस से कोई कैरेक्टर या कोई जो वर्ड है जो हम उसमें क्या है एंटर किए, तो अब क्या होगा, प्रोसेसर के पास नहीं जा सकते हैं, प्रोसेसर के पास नहीं देख के हम उसको क्या है डीएमए कंट्रोलर के पास दिए, एंड डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, उस जो रिक्वेस्ट आया उसको मेन मेमोरी में देगा, एंड फ्रॉम मेन मेमोरी हम लोग को क्या होगा, जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग देखेंगे। डीएमए कंट्रोलर हम लोग का बेसिकली क्या है कि प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर का लोड कम करने के लिए हम लोग एज ए डीएमए कंट्रोलर ये करते हैं। इससे क्या है, प्रोसेसर का लोड थोड़ा कम हो जा सकते हैं। अब प्रोसेसर को इन्वॉल्व करने से हम लोगों को ये कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें जितना टाइम लगते, डीएमए कंट्रोलर में और भी टाइम कम लगेगा। डीएमए कंट्रोलर में और भी टाइम मुझे कम लगेगा इसको इन्वॉल्व अगर करेंगे, क्योंकि डीएमए कंट्रोलर बाकी कोई काम नहीं करते। डीएमए कंट्रोलर सिर्फ एक हार्डवेयर मॉड्यूल है, ये सिर्फ ये काम के लिए डेडिकेटेड है। तो डीएमए कंट्रोलर को हम लोग इसीलिए इसमें यूज करते हैं। ठीक है, सर इसमें मेनली ये सिस्टम बस में बोलो। सर इसमें डिस्क फिर यूज क्यों हुआ? यहाँ पे सिस्टम बस वहाँ डिस्क से कनेक्ट क्यों है?
प्रिंटर को रीड करने के लिए सर? नहीं, डिस्क देखो, डिस्क जो है ये हम लोग का, अब देखो ये टोटल एक सिस्टम में क्या है, एक सिस्टम में एक प्रोसेसर होगा, एक मेन मेमोरी होगा। डिस्क हम ऐसे दिखाने के लिए यूज किए कि डिस्क जो है ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, एज ए सेकेंडरी मेमोरी डिस्क हम यूज किए इधर, ठीक है, एज ए सेकेंडरी मेमोरी ओके सर। हम डिस्क यूज, ठीक है। और ये जो प्रिंटर है ये क्या है, ये प्रिंटर हम लोग का एक आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो एक टोटल जो सिस्टम रहेगा, उस सिस्टम में क्या होगा, एक प्रोसेसर होना चाहिए, एक मेन मेमोरी होना चाहिए, एक सेकेंडरी मेमोरी होना चाहिए, एक इनपुट डिवाइस होना चाहिए, एक आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। ये टोटल सिस्टम में रहना ही चाहिए। सर अब सिस्टम आ बस गया। जो है, सिस्टम बस क्या करेगा, सिस्टम बस टोटली इंटरनली, जो इतना इंटरनल, ये सब इंटरनल कंपोनेंट्स है। सिस्टम बस क्या है, सिस्टम बस के थ्रू ये सब कनेक्टेड है। तो अब देखो कीबोर्ड से जो कैरेक्टर तुम एंटर किए, वो तुम्हारा प्रोसेसर फास्ट क्या है, हाँ फास्ट हम प्रोसेसर या डीएमए कंट्रोलर जिसके पास भी जाएगा, तो कैसे जाएगा, ऐसा तो नहीं जा सकते है कि कोई, अगर ये नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा। सिस्टम बस के थ्रू क्या है, सिस्टम बस जो है वो कनेक्शंस के लिए, मतलब हम लोग का एज ए पाथ, एज अ वे ऑफ पाथ ये बस यूजेस होता था। बस तो हम लोग ऐसे इसलिए यूज करते हैं कि ये क्या है, एक कम्युनिकेशन पाथ है, एंड थ्रू दिस कम्युनिकेशन पाथ, ये कम्युनिकेशन पाथ है जो क्या है, टू और मोर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो थ्रू दिस सिस्टम बस हम लोगों को क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। जो इंटरनली जितना कंपोनेंट्स है हम लोग के सिस्टम में, उसके बीच में कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग बसेस यूज करते हैं। और सिस्टम बस क्या है, सिस्टम बस को हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं। अब देखो सिस्टम बस के अंदर ही एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, डेटा बस है, ये सब है। बट सिस्टम बस क्या है कि टोटल ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग मिलके सिस्टम बस कहते हैं। जो हम फर्स्ट एकदम फर्स्ट में जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाए थे, उस टाइम बोले थे, देखोगे कि सिस्टम बस जो है ये हम लोग का तीनों बस लेके बनता तीनों था, का एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस। डेटा बस। तो टोटल टोटल जो बस है, ये टोटल बस सिस्टम बस का है। तो ये जो है सिस्टम बस हम लोग का कम्युनिकेशन पाथ है। और ये कम्युनिकेशन पाथ क्या करते हैं, हम लोग को टोटल इंटरनली जो है, टोटल इंटरनली हम लोग का सब जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे प्रोसेसर, मेन मेमोरी, सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी जो है डिस्क, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सबको क्या है, ये सिस्टम बस से कनेक्टेड करके इसीलिए रखे क्योंकि इंटरनली अगर कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो हम लोग को इस बस के थ्रू ही करना है, और कोई वैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का बसेस यूज हुआ। और डीएमए कंट्रोलर जो है ये बेसिकली हम लोग का एक हार्डवेयर मॉड्यूल है। ये हार्डवेयर मॉड्यूल इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर का लोड थोड़ा कम करने के लिए। और इससे क्या होगा, प्रोसेसर को इन्वॉल्व करके ये काम जो हम करते हैं, इससे जितना टाइम लगते, डीएमए कंट्रोलर को यूज करके क्या होगा, उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम कम डीएमए हो जाएगा। कंट्रोलर का, हाँ, डीएमए कंट्रोलर का कोई बाकी बाकी हेडेक नहीं है, बाकी वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ डेडिकेटेडली ये काम के लिए यूज होता है। बट प्रोसेसर क्या है, अगर एक सिस्टम में तुम बोल सकते हो कि हाँ प्रोसेसर को हम छोड़ के तो ये भी कर सकते हैं, बट प्रोसेसर को हम लोग तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर नहीं रहेगा तो सिस्टम कैसे रहेगा। तो प्रोसेसर का क्या है, प्रोसेसर का ये टास्क हम डीएमए कंट्रोलर को दे दिए, थ्रू डीएमए कंट्रोलर ये टास्क परफॉर्म होगा। तो थोड़ा एफिशिएंटली और कम टाइम में ये टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। और इसका जो ये हार्डवेयर मॉड्यूल है, तो इसका कॉस्ट भी उतना नहीं है जितना चिप्स वगैरह का कॉस्ट है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग डीएमए कंट्रोलर जो है, डीएमए कंट्रोलर को यूज करते हैं। और इसका काम टोटल यही है, ठीक है। यस सर। ओके। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चंस, बाकी किसी का कोई क्वेश्चंस है? सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएमए कंट्रोलर।
Okay, so if anyone has any question like that, please ask. कोई और किसी का कोई क्वेश्चंस है? नहीं सर। ओके, तो यही था टोटल डीएमए कंट्रोलर जो है, डीएमए कंट्रोलर का डिस्क्रिप्शंस। तो नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में हम डीएमए कंट्रोलर का कुछ जो मैथमेटिक्स है डीएमए कंट्रोलर का, वो हम लोग डीएमए कंट्रोलर का मैथमेटिक्स दिखाएंगे, ठीक है। बट ये जो है डीएमए कंट्रोलर का, ये तुम लोग का यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये डीएमए कंट्रोलर का जो है टोटल ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखने रहते हैं। बट इन गेट पर्सपेक्टिव उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगता है, तो हम लोग जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसका मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। सर हाँ बोलो। सर जैसे आप एक एक टॉपिक सब क्लियर कर रहे हैं ना, तो फिर हाँ उससे हाँ, रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा ना सर, उसका भी एक सेक्शन लीजिएगा। आई मीन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। कौन सा बोलो तो? तो जैसे आप वो पैरेलल पैरेटी इनपुट पढ़ा है ना, उसके बाद हाँ उसका हाँ हाँ केसेस पढ़ा है, और फिर आज डीएमए पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है सर वो सब। हाँ हाँ हाँ, मेनली जो है तुम लोगों का अगर बोले तो यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्सपेक्टिव हम बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्सपेक्टिव सिर्फ तुमको डीएमए कंट्रोलर का डिस्क्रिप्शन ही लिखने दे सकते हैं, या उससे उससे रिलेटेड कुछ ये दे सकते हैं, मतलब कोई ऐसे क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस है, जैसे डीएमए कंट्रोलर को अगर बोले प्रोसेसर को छोड़ के तुम ये क्यों नहीं कर सकते हो, ऐसे कोई ये देने दे सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, या टोटली डीएमए कंट्रोलर जो है इसको लिखने दे सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के थ्रू हम बोल रहे हैं। बट इन गेट पर्सपेक्टिव अगर बोले तो इसमें क्या है कि इसमें डीएमए कंट्रोलर का कुछ मैथमेटिक्स होता है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं देते हैं। बट अगर गेट पर्सपेक्टिव बोले तो उसमें कुछ मैथमेटिक्स होता है, उस मैथमेटिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे उसको, ओके सर। ठीक है। तो ओके सर। टोटल अगर तुम लोगों का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन का बोले तो यूनिवर्सिटी एग्जाम का टोटल हम कंप्लीट कर दिए हैं। तुम लोगों का जो है देखोगे, नोट्स भी देख लेना, नोट्स जो है उसमें तुम लोग उसको चेक करना, एलएमएस में टोटल नोट्स अपलोड है, और ये भी हम दे देंगे उसमें, जो डीएमए कंट्रोलर का ये है वो दे देंगे। तो ये क्या है, टोटल तुम लोगों का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस कंप्लीट है। बट इन गेट पर्सपेक्टिव इसमें और कुछ लगता है, तो वो वाला है कि कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट इसमें लगते हैं, वो वाला हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को डिस्कस करेंगे, ओके। ओके सर। सो थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द थैंक यू सेशन। सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।